No, sir, no doubt. ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। राइट विराज, आपसे स्टार्ट करते हैं। रेनबो का कल मैंने समझाया था आपको, यहीं से शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 37। All right, विराज, Jatin. स्टार्ट रेनबो। Yes, sir. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of a sun. The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal refraction, different colors reach the observer's eye. A rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. Okay, guys, I had explained this process to you. Today, I'm going to explain the process of atmospheric refraction to you, and from that, we'll know many phenomena. We'll know the phenomena of twinkling of stars. Why do we see sun even when it is set, already gone down? Why do we see sun even if it has not come up? So this is called early sunrise and delayed sunset. All right, and why planets don't twinkle and why stars appear higher than they are. I think there are total four phenomena we're going to study, and then we'll study about the scattering of light. Okay, so what is atmospheric refraction? Atmospheric refraction. Okay. So we have learned that light bends towards normal while moving from rare to denser medium. Okay. So let's compare. This is Earth, and there is a blanket of air around it. This blanket of air is approximately 1400 kilometers. That is the till where the uh, atmosphere extends. Though initially it is most of it is only 40 kilometers, 14, then 40, then 300, and then 1400. Like this is how it goes, different layers. Okay. So as compared to, and this is vacuum. कार्तिक सिरई आप बताएं मेरे को, दिस इज रेयर और दिस इज रेयर. सर बाहर वाला. हायर वाला रेयर. वैक्यूम रेयर है और ये अंतरिक्ष, दिस इज अ डेंसर मीडियम. So yes, denser. Denser. Okay. Now if this, so if the sun rays come here or whatever rays come here, generally sun rays will come. So what will happen when they enter here, and I am taking this as the point between mediums. I am taking this layer. Okay. So this is the normal. So it will bend towards me. It will bend towards me a little bit. I'm watching from here. Okay. Okay. I'm watching from here. So it will bend towards me. बट हमारी आईज की प्रॉब्लम क्या है, हमारी आईज को जब ये बेंड हो जाती है ना, ये इसका वही गेम है जो ग्लास के अंदर पेंसिल का होता है. ग्लास के अंदर की पेंसिल देखो, ग्लास के अंदर की पेंसिल की जो है ना वो ऐसे है. पेंसिल तो सीधी है, लेकिन जब हम यहाँ से अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी आंखों की ये वाली जो यहाँ से चल रही है,
ये रे जो हमारी आंखों के पास आनी चाहिए, ऐसे जब ये चलती है यहाँ से, सपोज करो ये यहाँ से चल रही, थोड़ा इसको टेढ़ा करो, ये पेंसिल है मेरी, सीधी पेंसिल है, पेंसिल टेढ़ी नहीं हुई है, बट जब मेरी आंखों तक ये पहुंचेगी, ये वाली बीम पहुंचेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी नॉर्मल है, जो भी नॉर्मल है उससे ये ऐसे नहीं जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से थोड़ा सा जो ये एंगल है इससे ज्यादा ज्यादा एंगल पे नजर आएगी, ज्यादा एंगल पे जाएगी ऐसे, और मेरी आईज को ऐसे देखेंगी कि ये यहाँ पे है, बाकी रेज के साथ भी हो, तो ये जो पार्ट पेंसिल का यहाँ पे है वो मुझे यहाँ नजर आएगा, और मुझे पेंसिल कैसी नजर आएगी, मुझे पेंसिल ऐसी नजर आएगी, मतलब आनी चाहिए थी, ऐसे नजर आनी चाहिए थी पेंसिल ऐसे, लेकिन नजर कैसे आएगी मुझे, ऐसी नजर आएगी, टेढ़ी नजर आएगी, उठी हुई नजर आएगी। सिमिलरली विद द कॉइन्स, सो हमारी आईज को स्ट्रेट दिखाई पड़ता है, तो जब मैं यहां देखूंगा तो मेरी आंखें इसको नहीं देखेंगी, स्टार को या जो सन है इसको, मेरी आंखें इस स्टार या सन को देखेंगी तो इसी को, लेकिन इसको यहां देखेंगे, इसको यहां देखेंगे, क्योंकि ये बैंड होने के बाद इधर टर्न कर गई, अब ये वापस देखेंगे मेरी आईज, तो इसको ऐसे देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हम आगे पढ़ते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फर्स्टली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अंतरिक्ष आप पढ़ें, मैं शेयर कर रहा हूं, देन आई एक्सप्लेन। Yes. Yeah, go ahead. Some phenomena based on atmospheric refraction. Yes, sir. Some phenomena based on atmospheric reaction. Twinkling of stars. The twinkling of a star is due to the atmospheric refraction of starlight. As light from the star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitudes. The continuously changing atmosphere refracts the light by different amounts. In this way, the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, and the stars appears to be twinkle at night. Okay, wait karna. All right. Now let us understand this process. So you have a star here. This star you have here, and you are here on the Earth. Now, between you and the star, star, there are these many layers. ये सबसे ज्यादा डेंस है, फिर रेयर होगी, फिर डेंस होगी, फिर रेयर होगी, फिर डेंस होगी, फिर रेयर होगी, मतलब फिर सॉरी, फिर रेयर ही होती जाएगी, ऊपर रेयरिफाइड होती जाएगी। सो लेट्स से अ बीम कम्स हियर, सो ये रिफ्रैक्ट होगी थोड़ी, कभी इतनी, कभी इतनी, कभी इतनी, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो द लाइट विच इज रीचिंग योर आईज, amount of light reaching the eye is changing. Amount of light reaching the eye changing, and therefore star seems to be bright and dull alternatively. This results in twinkling. This results in twinkling. But this does not happen with the planets. Generally, you see Venus as the morning star or evening star. Morning, evening star. Now the amount of light which is coming from star is very tiny. Amount of light reaching the eye is changing. But यहाँ पे एक और पॉइंट देना पड़ेगा. Initially very little. Initially ही ये लाइट बहुत थोड़ी सी होती है. तो इसका जो चेंजेस है ना वो फर्क पड़ता है. इसकी जो चेंजिंग हो रही है उसका फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है. लेकिन इसकी लाइट इतनी ज्यादा हमारी आंखों में आ रही है कि अगर ये ऐसे ऐसे होगी, थोड़ी कम डाउन भी होगी, फिर भी इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला. इट इज समथिंग लाइक दैट कि रात के अंधेरे में
कोई दूर से छोटा सा छोटी सी कैंडल जला रखी, टॉर्च लाइट बहुत दूर जला रखी, वो आपको दिखेगी। लेकिन दिन में अगर तुम्हारी गाड़ी की कार की हेडलाइट ऑन है तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, बिकॉज द वेरिएशन एज कंपेयर टू द ओवरऑल लाइट is very less, but here as compared to the overall light the variation is significant amount. So it's many times it so happens that you are watching you're looking at a very tiny star, एक कुछ टाइम के लिए दिखना बंद ही हो जाता है, फिर नजर आ जाता है, फिर दिखता है, फिर नजर आता है। ओके Sir, there is a doubt, sir. okay, एक मिनट all right, and one more thing, when you look at a star it will appear to you higher than it is. How? Stars appear higher. वही पेंसिल वाली कहानी, स्टार यहाँ पे है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके बीच में स्टार के बीच में ये रेज है, लाइट यहाँ आई तो जो नॉर्मल था यहाँ पे, उससे लाइट अंदर बेंड हो गई। ये स्टार है, ये पे लाइट अंदर बेंड हुई थोड़ी सी ऐसे, और ये क्योंकि ये बेंड हुई है तो आपको स्टार जब देखोगे आपको स्टार और ऊपर जाएगा, यहाँ नजर आएगा। It will not seem here, it will seem higher than the actual position. Yeah, Viraj, ask me. Sir, there was a doubt, sir. Sir, like earlier, sir, when I used to look at stars, sir, there were a lot, sir. But nowadays, they don't seem to be appearing over there. So it's because of the global warming and pollution and the carbon dioxide layer around the earth, right? भाई तू तो नासा चला जा रवि। नहीं सर, पापा ने बताया बहुत सारा। They are looking for bright guys like you. It has nothing to do with carbon dioxide. Achintya, good evening. It has nothing to do with the star. भाई वो धूल ज्यादा हो गई है, pollution ज्यादा हो गया है। Layer of carbon around earth. Layer of carbon around the earth. There is no layer of carbon around earth. क्या बात कर रहा है? My father taught me and I saw it on Google also. There is a layer of a very thin layer which is covering the earth. अच्छा तो मेरे को फोटो खींच के भेज देना भाई, स्क्रीनशॉट लेके उसका। Where is the carbon around the earth? There is no carbon around the earth. Carbon dioxide is there. But carbon dioxide is a gaseous state, and it's not because of that. भाई, it's because of pollution. आप लेह चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, पोल्स पे चले जाओ, आप देखोगे ऊपर बिल्कुल साफ नजर आएंगे, पूरे स्टार्स नजर आएंगे, पूरे नजर आएंगे। या राजस्थान में चले जाओ, जोधपुर के पास चले जाओ, रात को खूब नजर आते। मैं तो हो रहा हूँ, मैं तो I was at 22,000 feet in Siachen. मेरी पहुंच जो थी 22,000 फीट पे थी। ऐसा लगता था स्टार को ऐसे पकड़ सकते हो हाथ करके, इतने साफ दिखते हैं वहाँ, क्योंकि पोल्यूशन तो है नहीं इतनी हाइट पे। सियाचिन में उतना पोल्यूशन कहीं है नहीं, वहाँ पे साफ है बिल्कुल, क्लियर स्काई। सो ये इसका सिर्फ एक कारण ये है भाई। कहाँ है अपना रवि? CO2 है, कार्बन नहीं है। ठीक है, CO2 है। CO2 को तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अरे तुम तो कार्बन कह रहे थे ना, देख कार्बन। वो सब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब था, इसलिए थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो स्टार का चमकना कम नहीं हो रहा। हाँ, धूल वूल आ जाएगी, जैसे धूल लक्कड़ आ गया, तूफान आ गया तो दिखेंगे नहीं। एक दिन बारिश हो गई तो रात जितने पार्टिकल्स थे डस्ट के, अदर पॉल्यूशन, वो नीचे बैठ गए, तो आपको बड़ी रात बड़ी सुनहरी लगेगी, अच्छे स्टार बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे। ये रीजन है भाई। ओके, हाँ राजवर्धन। सर कुछ स्टार्स होते हैं जो प्लैनेट के साइज से भी बड़े होते हैं सर, तो उनके साथ भी वही फेनोमेना फॉलो होता है कि जो all stars are much greater than Earth. I think the sun has so big that it can accommodate 10 million Earth, and our star is a mid-sized star. It's not a very large size star. All stars are very big as compared to planets. Then I have one more doubt, sir. Yeah, Viraj, एक मिनट, कौन सा फिनोमेना? राजवर्धन सर की जो बिग स्टार्स होते हैं उनमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो, लेकिन हमको नॉर्मल जैसे प्लैनेट्स के साथ जो होते हैं हमको नॉर्मली दिखाई देता है, हायर देन इट। नहीं देख, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा भाई, थोड़ा सन के साथ भी तो फर्क पड़ रहा है। अगला मैं पॉइंट जो डिलेड सनसेट और अर्ली सनराइज का बताऊंगा, उससे फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखो अर्थ के चारों तरफ एयर तो है और वो डेंसर है एज कम्पेयर टू वैक्यूम, तो जब रेज आएंगी तो थोड़ा सा तो बैंड अंदर होगी, थोड़ा अंदर बैंड होगी, तो उसकी जो लाइट हमें इमेजिनरी लाइन जाती है पीछे की तरफ, वो जहां स्टार, सपोज स्टार से आई लाइट यहाँ पे ऐसे आई और यहाँ बैंड हो गई,
तो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो राजवर्धन इफेक्ट तो आएगा, यस बट ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट नहीं आता। ट्विंकलिंग वाला देखो, हमें प्लैनेट दिखते कौन से, हम लोग नेकेड आई से तो सिर्फ एक ही प्लैनेट देख पाते हैं, एंड दैट प्लैनेट इज वीनस। बाकी तो साइंटिस्ट देखते हैं अपना अपना टेलीस्कोप से, हमें तो नजर नहीं आते हो। टेलीस्कोप से आप देखोगे तो नहीं ट्विंकलिंग होगी, बिकॉज स्टार्स से जो लाइट आ रही बहुत कम है एज कंपेयर टू द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन बाय द प्लैनेट्स। विराज, So what is the exact shape of star, sir? Is it really of a triangle type of a thing or something else? all heavenly bodies are spherical in shape. All right, sir. All heavenly bodies are spherical in shape. So, sir, it means that there is a partial light ray which is going to them and forming that kind of shape. हाँ, जा रहा है, एक मिनट होल्ड करना, चल All right, ध्यान sir. से करना बेटा। रात कितने बजे तक आएगा? अच्छे से आराम से ड्राइव करना। ओके, हाँ, सो सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग? Yes, sir. So I was saying, sir, that means कि जो light rays है, sir, they are partially on the heavenly body, sir, which is forming that shape. You have to state your query properly. I am not Yes, understanding. sir. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइट रेज है, सर, आप जैसे कह रहे हो कि वो स्फेरिकल होते हैं, सर, तो वो सिर्फ उतनी उन स्फेरिकल हेवनली बॉडीज पे आती हैं कि जितने में वी गेट दैट ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ शेप। ट्रायंगल किसको नहीं मिलता यार? ये तो ट्रायंगल बनाती है दुनिया स्टार की। ट्रायंगल All right, कोई sir. कोई स्टार ट्रायंगल नहीं है, वो तो ऐसी बस एक वो चल पड़ा है कि स्टार ट्रायंगल, क्योंकि ट्विंकलिंग है तो कभी दिखी कभी नहीं दिखी, कभी दिखी कभी नहीं। कोई स्टार ऐसा नहीं है, सारे स्टार स्फेरिकल है। All right, sir. ओके, राइट गाइस, Excuse me, sir. नेक्स्ट पॉइंट। या कार्तिक सर, सर जब लाइट बेंड होती है तो सर एक ही डायरेक्शन में होती है या किसी भी डायरेक्शन में सर? ऐसे जिस मैं बताता हूँ नॉर्मल की तरफ जाती है। तो अगर ये मीडियम आपका रेयर है और ये डेंस है, तो एक स्टैंडर्ड रूल है कि जो भी लाइट, जैसे सपोज करो लाइट यहाँ, ये सरफेस है आपकी जहां पे आप मान रहे हो, एक्चुअली एटमॉस्फेयर में तो एक जगह तो नहीं मान सकते, देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स। तो आप एक जगह ले लो कोई भी, तो ये लाइट ऐसे आ रही है, तो यहाँ नॉर्मल बना है कार्तिक सर, यहाँ नॉर्मल बना है। तो ये जो एंगल Yes, है ना, sir. ये वाला एंगल जो ये एंगल नॉर्मल के साथ इसने जो बनाया है, तो यहाँ ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये अंदर घुस जाएगी। ये मान लो कि जो डेंसर एरिया इसको दबा देगा अंदर की तरफ, ऐसे घुसा देगा। और जब हम इसको ऊपर देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, तो जो स्टार एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था वो हमें यहाँ नजर आएगा। So that's why star will seem higher to us. Okay. कार्तिकेयन मिश्रा प्लीज आप रीड करें आगे। नेक्स्ट। या द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, मैंने बताया भी उसी चीज का अभी रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, Yes, sir. The stars seem higher than they actually are. As the light from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends toward the normal each time due to the atmosphere refraction. Therefore, the apparent position of the star is slightly different from the actual position. The star appears to be slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. होराइजन। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग, और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होराइजन को यूज करके देखो, यूज करते हैं। होराइजन जनरली क्या होता है दोस्तों? होराइजन होता है जब हम किस चीज को देख रहे हैं, सपोज यहाँ देख रहे हैं, होराइजन बेसिकली एवरीबॉडी नोज दैट, जहाँ पे अर्थ और जहाँ पे स्काई और अर्थ मिलते हुए नजर आते हैं, मीट करते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही यहाँ पे। तो अगर सपोज करो यहाँ पे उसको स्टार नजर आ रहा है, सर स्क्रीन शेयर। ओके थैंक यू। यहाँ अगर उसको स्टार नजर आ रहा है और स्टार से ये लाइट ऐसे आएगी भाई, तो ये लाइट क्या होगा, जब यहाँ एटमॉस्फेयर में घुसेगी, तो इसका जो ये सपोज करो ये लेयर है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल था ये और छोटा हो जाएगा, कि आंखों में पहुंचने वाला एंगल और छोटा हो जाएगा। तो इसको स्टार जब इसको एक्सटेंड करेगा तो और ऊंचा दिखाई देगा। ये फिनोमेना जो यहाँ है, अगर साइड में देखेगा होराइजन पे, और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा वो फिनोमेना। ओके, इसमें जो डायग्राम दे रखा है, बल्कि मेरे डायग्राम से अच्छा डायग्राम नोट्स के अंदर है। आई थिंक कैन हैव अ लुक एट दिस। ओके, प्लांट्स नॉट ट्विंकल, या ये भी देख लेते हैं। कार्तिक मिश्रा प्लीज कंटिन्यू करें। Yes, sir. या तो ये वाला ये वाला जो डायग्राम मेरे डायग्राम से ज्यादा क्लियर है। देखो, तो इसमें नीचे बेंड हो रही है वो उसकी तरफ। मैं देखो, इफ आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल, सपोज यहाँ पे ये ऐसे जा रही है, ये सरफेस है और यहाँ पे, और ये नॉर्मल है,
तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, सीधी एक्चुअली सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अभी बेंड हो गई। और जब हम देखेंगे इसको, उसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसे अपीयर होगा। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। Planets do not twinkle. As planets are of larger size than stars and much closer to the Earth, they can be considered as a collection of large number of point-sized sources of light. The total variation in the amount of light entering our eye from all these individual point-sized sources will average out to zero, which will nullify the nullify the twinkling effect of each other. Therefore, planets do not twinkle. ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बनता है इस पर। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्लैनेट्स, यहाँ पे तो एक ही स्टार था, अब प्लैनेट को मान लो तुम कि बहुत सारे इतने छोटे 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स, अब इसकी लाइट कभी प्लस हो रही है कभी माइनस हो रही है, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो तो उनकी कभी प्लस होती है और कभी माइनस होती है, तो ऑन एन एवरेज दिस प्लस माइनस विल कैंसल आउट and you will see hardly any variation. So they seem constant. They don't twinkle. All right. Now let me explain to you the process of advanced sunrise and delayed sunset. पहले देखते हैं एडवांस सनराइज। अर्थ है, आप अर्थ के यहां खड़े हुए हो और सन को देख रहे हो। अब सन है इधर और सन की लाइट जा रही है ऐसे। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन की लाइट ऐसे नजर आ जाती, आपको सन नजर नहीं आता। सन की लाइट ऐसे चली जाती और आपको सन नजर नहीं आता, लेकिन ये लाइट ऐसे गई नहीं। ये क्या हुआ, जब ये ऐसे आई, ऐसे आ रही थी, तो ये ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, अभी नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर गई। तो ये जो एंगल ये जो बनाया इसने, देखो ये हमारी सरफेस है और ये नॉर्मल है। तो रे जब ऐसे आई तो ये जो एंगल था, ये यहाँ पे एंगल थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ ये एंगल थोड़ा कम हो गया, ऐसे हो गया। एंड व्हेन दिस हैपेंड सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ और कम हो गया अगले वाले पे, सो इट विल स्टार्ट बेंडिंग, and reaching the eyes of the person who is watching it, and the person is watching the sun at this place. Now sun has not risen yet, sun is still below the curvature of earth, but because this apparent bending, the position of the sun will be seen here. So sun has not risen अब तक, लेकिन हमें दिख गया, इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। एंड सेम थिंग will happen in delayed sunset. आप यहां खड़े हो बीच के किनारे, आप इधर खड़े हो बीच के किनारे, और सन जो है छुप चुका है, सन नीचे चला गया है, आपको सन नजर नहीं आना चाहिए था, सन नहीं दिखना चाहिए था आपको, सन की लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी चली जानी चाहिए थी, बट क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो सेम फिनोमिनल विल हैपन हियर, आपको ऐसी बैंड नजर आएगी और आपको लगेगा कि सन यहाँ पे है, अभी भी है सन। सो दिस इज एक्चुअल, this is apparent, appears, the way it appears, and here the sun, lower sun is actual and upper wala is apparent. This is the phenomenon. All right, let us read on. कार्तिक सिरोही आप पढ़े आगे, मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हाँ जी,
Yes, sir. Advanced sunrise and the delay sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before to the actual sunshine and about Sunrise, sunrise. 2 minutes after the actual sunset. This is this is because of the atmospheric refraction. When the sun is slightly below to the horizon, the sunlight coming from the less dense to more dense air, the reflected downwards. Because of this, the sun appears to be raised above the horizon, and so the sun can be seen about 2 minutes before actual sunrise. Similarly, due to the atmospheric reflection, the sun can be seen about 2 minutes even after the sun has been set horizon. बिलो होराइजन, बिलो सन हैज सेट बिलो होराइजन। तो दोस्तों अभी हमने इसको बात कर ली अभी। ओके, ये नोट भी पढ़ना, पॉइंट नंबर 43। Yes, sir. At sunrise and sunset, the sun appears फ्लैटेंड flattened. फ्लैट नजर आता है ऊपर का पार्ट। The apparent flattering of the sun's disk is also due to atmospheric reflection. एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, ये मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ये आई मिस्ड आउट ऑन दिस। आई विल टेल यू व्हाई एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई हैव टू गिव द एग्जैक्ट रीजन। देयर इज एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस। कुछ तो होता है कि रेज ऑफ they reach our eyes at the same time, so we don't see the upper part of that. I'll explain this to you. This is on me. Okay, now we will discuss scattering of light. So refraction का phenomena अब खत्म हो गया। refraction के phenomena की चार पार्ट थे: twinkling of stars, not twinkling of planets, delayed sunrise and early sunrise, delayed sunset. Okay, एक फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है आपको। आई विल डू दिस लेटर, नॉट नाउ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर इट ऑफ एंड नाउ। इसका कुछ है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। नाउ लेट अस सी द scattering of light. So guys, we had done in the last class I had told you that red light कल मैंने एक शायद चीज तुम्हें उल्टी बता दी। मैं शायद ये कहा था, अगर मुझे बता रहा मैंने क्या बताया था एक्चुअली। मैंने शायद ये कहा था कि जैसे मैंने अगर ये शर्ट पहनी हुई है, इस पे जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इस पे जो लाइट पड़ेगी, ये ऑरेंज लाइट को रख लेगा और बाकी सबको वापस कर देगा। ये बताया था मैंने। चलो मुझे यही शायद बताया एक्चुअली। अभी जस्ट राइट, आई डोंट नो व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे, और यही बताया था कि अलग बताया था। व्हाट विल हैपन इज व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस, when the light falls on this, it सर will ये सारी Sir, लाइट absorb wavelength. कर लेगा और सिर्फ ऑरेंज लाइट भेज देगा वापस। हाँ, बाकी लाइट्स अब्जॉर्ब कर लेगा और सारी लाइटों को वापस कर देगा। और जो नेक्स्ट क्रिएटिव बना वो इसी बेसिस पे बनवाया मैंने। हाँ, इट विल अब्सॉर्ब एक्सेप्ट। अच्छा, ओके, सो उल्टा है। ये क्या करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन को वापस भेज देगा। सो ग्रीन लाइट विल रीच माय आईज, ऑल लाइट विल बी एब्जॉर्ब, ओनली ग्रीन लाइट विल रीच माय आई and I'll be able to see. So in case of black, it will absorb all light and no light will reach my eye. So I will not see the black. That's why black is so difficult to see, especially if it is slightly dark. तो वहाँ वैसी लाइट कम है, वो जो बाकी लाइट थी वो ब्लैक ने एब्जॉर्ब कर दी। So that is the reason black is not seen. White किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सबको वापस दे देगा, तो we are able to see. Green है तो ग्रीन सबको ले लेगा अपने पास, ग्रीन सिर्फ ग्रीन वेवलेंथ को वापस भेजेगा। So the way to remember it is we only see what has been given to us by the object. ऑब्जेक्ट ने बाकी सब कुछ रख लिया, हमें सिर्फ वापस वो भेज दी लाइट जो कि हमें दिखाना चाहता है। ठीक है, so I think this way is easier to remember this concept.
मैं यहाँ लिख देता हूँ देख से, so that it will be on the video and it will be on the board. जब तुम नोट्स बनाओगे तो पॉइंट को नोट कर लेना. We see a red shirt because all light has been absorbed and only red light reaches our eyes. I think this is easier to remember now. अंतरिक्ष अब ध्यान रहेगा. और कोई Yes, लाइट sir. आई नहीं हमारे पास रेड लाइट ही आ रही है बस भैया, हमें रेड ही दिखाई पड़ता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया. Okay, now related to this, I said yesterday that red light has got the largest wavelength. And violet has got the least. So now principle of scattering is red large wavelength मतलब less scattering and violet more scattering. Okay, अब देखते हैं. So जब हमारे इसको मैं अभी फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ. ओके, अंडरस्टूड दिस. जस्ट रिमेंबर दिस कि रेड लाइट बैंड भी कम होगी, स्केटर भी कम होगी, या समझ लो कि रेड लाइट इज मोर फोकस्ड लाइट, मोर पावरफुल लाइट. तो अभी आप लेजर की बीम देखो, रेड लाइट की स्ट्रॉन्ग नजर आती है एज कंपेयर टू अदर कलर्स, बट वो वाला एग्जांपल नहीं, हम तो बाकी के एग्जांपल डिस्कस करेंगे. ओके, सो रिमेंबर दिस, रेड लाइट का स्कैटरिंग कम होगा. क्या है एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स क्या है? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जैसे आपने अभी बताया कि जो कलर दिखाना होता है सर वही लाइट वापस आती है बस. हाँ, तो सर फिर सनलाइट सर येलो दिखती है. नहीं, सनलाइट तो वाइट दिखती है, सनलाइट तो वाइट होती है सर नहीं, सन की हल्का जो हल्का लाइट होती येलो है, रहता है. कल ही तो पढ़ी हमने, सन की जो लाइट है वो वाइट लाइट मानी जाती है. नहीं सर, वाइट लाइट तो होती है लेकिन सर येलो दिखती है ना. ध्यान से देखना एक बार, फिर मैं भी रिसर्च करता हूँ सर लाइट को अगर किसी ऐसा मीडियम है से तो. पास करवा के कलर कर सकते हैं प्रिज्म के हैं? जरिए. सर लाइट को जैसे हम प्रिज्म से ऐसे ट्रांसफर कर रिफ्रैक्ट करवा के उसको कलर कर सकते हैं सर, वैसे ही 7 कलर्स के अलावा कोई और मीडियम. कलर्स तो और भी होंगे, उनके बीच में बहुत सारे कलर्स होंगे. तो जैसे अगर आप शेड लेने जाओ एशियन पेंट वाले की दुकान पे जाओ, दे विल शो यू मेनी 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 कलर्स. तो जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है, प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम है, लाइट ऐसे आती है और यहाँ से निकल के फिर ऐसे निकलती है. तो रेड और वायलेट, तो ये तो 7 कलर तो याद करने के लिए बता दिया हमें. कलर तो इनकी कॉम्बिनेशन पता नहीं मिलियंस ऑफ कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में जब कलर मिलेंगे बहुत सारे कलर होते होंगे. यस सर. ठीक है, बहुत सारे कलर्स होते हैं. बट ये जो येलो लाइट वाला पॉइंट है मैंने नोट कर लिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई जस्ट रिसर्च. पहली बात तो ये येलो लाइट मानी जाती है बिकॉज जो सारी बुक्स में हमें यही मिलता है कि ये जो लाइट होती है व्हाइट लाइट होती है. ओके दोस्तों, तो अब हम स्कैटरिंग के एग्जांपल्स देख रहे हैं. पहला तो है कि भैया वाई स्काई ब्लू. स्काई ब्लू क्यों है? क्योंकि जब सन से पैकेट आए हैं कलर के, सारे कलर मिले हैं उसके अंदर, रेड का भी है और ये तुम्हारा विबग्योर पूरा है. ठीक है, पूरा पूरा है. तो ये जब पैकेट आया इधर और इसने एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री मारी, और जब एयर के पार्टिकल से ये फोटोन हिट कर रहे हैं, ये जो वेवलेंथ हिट कर रही है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग कलर की
हिट कर रही है इनके साथ, तो इसके अंदर क्या होता है, जो वॉयलेट और ब्लू पार्ट है वो सारा का सारा फैल गया, और हमारे पास जो लाइट नॉर्मली आएगी हमारी आईज पे आएगी, उसके अंदर ये ब्लू उतना ही कम होगा, बट वो ब्लू इतना ज्यादा है कि यहाँ फैलने के बावजूद भी हमारी आंखों को पता नहीं चलता कि हमारे पास जो लाइट आई उसमें ब्लू कम है, बट स्केटरिंग की वजह से जो इफेक्ट दिखता है वो ब्लू दिखता है। So there is a doubt, sir. बोलिए। Sir, like a year or maybe 2 year before, sir, a eclipse happened in Ganganagar, sir, wherein the environment turned red, sir. लूनर और सोलर, Sir, I don't remember exactly. व्हाट टर्न रेड? Sir, the whole environment, sir. Like if we see outside, sir, it will be a little blue and a little bit sunny, but it was somewhat related to orange. And that day, it was somewhat related to orange and red. मेरे को भेजना इवेंट यार, जो भी होगा Sir, मेरे से moon भेजना। also. Right, sir. And sir, the color of the sun is white, sir. I have searched it. कलर ऑफ Color of the sun is white, sir. color of sunlight is taken as white, actually it's taken as white light, इसलिए बोलते व्हाइट लाइट, बिकॉज येलो तो बीच में है, हो सकता है वो इफेक्ट आ जाता हो। येलो है कहाँ? येलो बीच में है, विबग्योर ऑलमोस्ट बीच में है, 3 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, हो सकता है इस वजह से किसी लगता है, पर फिर भी व्हाइट लाइट माना जाता है। मैं भी रिसर्च करता हूँ थोड़ा सा। ओके, सनसेट पे भाई हमें क्यों नजर आता है रेड? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब हम नॉर्मली ऐसे हैं अर्थ पे देख रहे हैं और सन हमारे सर के ऊपर है, सन हमारे सर के ऊपर है, तो इट इज ट्रेवलिंग दैट 1400 किलोमीटर्स। सन की जो लाइट है हमारी आंखों में पहुंचने पर, लेकिन जब सन इधर आ जाता है, होराइजन पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी एयर के अंदर ओब्लिकली जा रहे हैं हम, सन की लाइट ओब्लिकली जा रही है। एक्चुअली पहले जो लेयर्स थी, सपोज करो ये अर्थ है, यहाँ लेयर्स थी, ये लेयर्स थी, इनमें लाइट ऐसे आ रही थी, ऊपर से सीधी आ रही थी हमारे पास, सीधी आ रही थी, ऐसे करके आ रही थी। और अब क्या होगा, यहाँ जो ट्रेवल कर रही है ये ज्यादा ट्रेवल करेगी, एंड इन द मोर ट्रेवलिंग other colors will be scattered, only red color and orange color will remain. कम तो थोड़ा बहुत इधर भी हुआ था, जब हम इधर देख रहे थे तब कम तो तब भी हुआ था, पर तब इतना कम नहीं हुआ था, अब बहुत ज्यादा कम हो गया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एयर के अंदर ट्रेवल करने का वो बढ़ गया, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अभी पहले लाइट सीधी आती थी, अभी ओब्लिकली आ रही है। अब सपोज करो हम सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो कुछ लोग तो सन को ऐसे देख रहे होंगे जिनके यहाँ नून हो रही है, अभी दोपहर हो रही है, पर जो इवनिंग वाला बंदा है, इवनिंग जिसके घर में हो रही है, जिसके बस में होते है, उसको ओब्लिकली आएगी, ऐसे टेढ़ी करके आएगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये डिस्टेंसिंग जो है, जो ट्रेवलिंग इज ज्यादा, तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लू भी उड़ गया, ग्रीन फ्रीन सब उड़ गए, 2 कलर बच जाते हैं, रेड एंड ऑरेंज। इसलिए हमें एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट हमें रेड कलर नजर आता है। तीसरा एग्जाम्पल है कि जो डेंजर सिग्नल्स हैं, जो लाइट्स हैं, डेंजर लाइट्स हैं, उनको हम ह्यूमंस क्यों यूज करते हैं एज रेड कलर? तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले नजर में आए, तो इजी एंड प्रोमिनेंट विजिबिलिटी। ट्रेन के डब्बे देख लो, ट्रेन की लाइटें देख लो, ट्रेन में जो गार्ड होता है उसका झंडा देख लो, जो चलने और जो रुकने का झंडा रेड होता है, चलने का झंडा ग्रीन होता है। तो रुकने का झंडा लाल इसलिए कि गाड़ी रुकनी है तो रुकनी है, फिर डेंजर है, रोको इस गाड़ी को। ये हमारे डाउट। अचिंत्या, you are able to understand so far what we have discussed? Yes, sir. Okay, अचिंत्या अब आगे आप पढ़े। Color at sun and sunrise. Just give me a moment please. Scattering पढ़ना पहले, scattering light ये वाला 0.44 बचा हुआ अभी। Sir, wait. Yes, sir. Scattering of light. The reflection of light from an object in all directions
is called scattering of light. The color of scattered light depends on the size of scattering particles and the wavelength of light. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of a longer wavelength, red light. If the size of a scattering particle is large enough, the scattered light may even appear white. ओके, ये नोट पढ़ दो. Note: the blue light present in sunlight is scattered 10 times more than the red light. Scattering is proportional to d raised to the power b, where d is equal to diameter of the light. Scattering is proportional to the 1 upon wavelength लेमडा, of light raised to 4. लेमडा बोलते हैं इसको, लेमडा. Lemma. ओके, some continue please. Some phenomena based on scattering of light. Tyndall effect. A beam of light passing through a true solution is not scattered. The scattering of light when it passes through a colloidal solution is called Tyndall effect. The Earth's atmosphere is heterogeneous. Mixture of a minute particle of smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air, which becomes visible due to scattering of light. ओके, टिंडल इफेक्ट तो सबको पता है भाई. अमेज़न के जंगलों के अंदर जो लाइट की बीम नजर आती है और उसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स तैरते रहते हैं. ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट, जब हम वो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे. और टिंडल इफेक्ट Excuse का me, मतलब sir. होता है apparent, एक मिनट, apparent movement is seen of some particles where the light rays are hitting with the particles and other एयर के पार्टिकल सेम है हर जगह, स्मोक के पार्टिकल सेम है, लेकिन दिखते वही हैं. जहां से लाइट रिफ्रैक्ट उनसे हिट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है. हाँ जी, आसमान. सर मैंने सुपरस्टार वाले ग्रुप पे वो लाइट वाला भेज दिया सर स्क्रीनशॉट. लाइट वाला कौन सा? सर येलो लाइट. येलो लाइट का, हाँ ठीक है, देख. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? आई थिंक अभी तक कुछ लोग, रवि ने नहीं पढ़ा अब तक. रवि आप पढ़े आगे. I explain this concept why the sky blue because बाकी का सारा का हमने अभी पढ़ा. Blue is 10 times more scatterable, तो सारी तरफ स्कैटर होगी. Why sky blue? हाँ जी. Why the color of sky is blue? During the daytime, sky appears blue. This is because the size of the particles in the atmosphere is smaller than the wavelength of visible light. So they scatter the light of shorter wavelengths. The scattered light blue enters our eye. It should be noted that the sky appears black to the passengers flying at high altitude because scattering of light is not prominent at such height due to the absence of particles. Okay, what happens? Why the space is black after some time? Because the people who go, if you see spaceship वगैरह में दिखा रहे, मूवी में दिखा रहे कि स्पेस को हमेशा ब्लैक दिखाया जाता है और ब्लू नहीं दिखाया जाता. वो क्यों? क्योंकि भाई एक लिमिट तक तो अर्थ की लेयर है और 1400 किलोमीटर के बाद वो खत्म होगी. अब यहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं है लाइट को स्कैटर करने के लिए, तो लाइट आ रही है जा रही है, किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं दिख रहा लाइट आ रही है जा रही है. ओके, तो यहाँ जब जैसे ही लेकिन इसके रास्ते में कोई वो आता है, एयरक्राफ्ट आता है, ऐसे दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है, ऐसे दिखता है, तो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट शाइन हो जाता है उसके जहां पर लाइट गिरी. उसके बाद जाने के बाद फिर ये डार्क हो जाता है. तो लाइट को स्कैटर करने के लिए, हिट करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए, नहीं तो लाइट हमें, वो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे और लाइट इसलिए निकल जाएगी. सपोज करो आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, ऐसे खड़े यहाँ पे, और ऊपर लाइट जा रही है, तो आपको लाइट नहीं नजर आएगी वो, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ. हाँ, अगर किसी ने उसको टर्न करके लाइट को आपकी आंखों पे डाल दिया, तब आपकी जो टी रॉड है, रॉड और कोन सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उनको लाइट इल्यूमिनेशन दिखाई पड़ेगा. लेकिन अगर यहाँ स्कैटर नहीं किया किसी ने, वो टिंडल इफेक्ट. ओके रवि, कंटिन्यू करें. शेयर. हाँ जी, कंटिन्यू. शेयरिंग. ओके, या absence of particles. Now come color of sun at sunrise and sunset. हाँ जी. Yes, sir. Scattering of light. The reflection of light from an object
in all directions is called scattering of light. The color of scattered light depends on the size of scattering particle and wavelength of light. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength, red light. If the size of scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. The blue light present in sunlight is scattered 10 times more than the red light. Scattering. So please can you read this part? I'm not able to say what it is. कौन सा वाला? Scattering would be. Point number बता मेरे को. 49. No, sir. No, in the note section, scattering, that sign between D. यार ये तो पढ़ चुके हैं. ये वाला क्यों पढ़ रहा तू? Color of sunset at sunrise and sunset. Yes, sir. पढ़ना था अपने को. Color of sun at sunrise and sunset. At I sunrise was and thinking of sunset. something actually. Yes. At sunrise and sunset, the sun and sky appears red. Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and cover larger distance in atmosphere before reaching our eyes. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eye is of longer wavelengths. This gives rise to the reddish appearance of the sky, of the sun and the sky. However, at the noon, the light from sun overhead would travel relatively shorter distance, so it appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered. Some phenomena based on scattering of light. Tyndall effect. A beam of light passing through a true solution is not कहाँ पहुंच scattered. गया? ओ भाई सुन, तू कहाँ पढ़े जा रहा है? ये पढ़ चुके हम लोग. ओके. सर ये वाला? हाँ ये पढ़ चुके सब. अब ये बस ये लास्ट वाला है. If Earth had no atmosphere, the sky would have looked dark and black. बिल्कुल, क्योंकि लाइट का स्केटरिंग नहीं होता. स्केटरिंग ही नहीं होता तो लाइट कैसे दिखती? हाँ, जिस पॉइंट के बारे में मैं सोच रहा था वो ओके. सो क्यों हमें फ्लैट दिखाई पड़ता है अर्थ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट? ठीक, ये है अर्थ और यहाँ बंदा खड़ा हुआ देख रहा है. ठीक है. नाउ सन इज वेरी लार्ज बॉडी. So you are here is the air ka blanket. This is the air blanket. So you are receiving the rays from two different parts of the sun. There are rays which are coming from here, which is the lower section. ये तो जितना लोअर सेक्शन होगा, ये जो लेंथ है ना, ट्रेवलिंग की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी. ये यहाँ पे उतना ही ऑब्लिकली आपकी आंखों से ये लेयर जो है ना आपकी आंखों से उतनी दूर होती है जितना आप नीचे चलते जाओगे. तो क्या होता क्या है, ये जो रेज, ये जो आ रही है ऊपर वाली रे, इसकी बेंडिंग थोड़ी सी कम होती है और इसकी बेंडिंग होती है ज्यादा, जो लोअर पोर्शन की यहाँ की. होता क्या है, फाइनली ये वाला जो पोर्शन है ना, these lights blend with your eyes, blend with these rays, and ये पोर्शन हमें यहाँ नहीं दिखता ही नहीं है, हमें सीधा ये पोर्शन दिखता है. ये मैं कहा मेरे को याद करना. तो इसकी जो बेंडिंग होगी, इसकी जो बेंडिंग यहाँ से आ रहा है, इसकी बेंडिंग के हिसाब से तो ये हमें ऊपर दिखना चाहिए था, ऊपर दिखना चाहिए था. और इसकी बेंडिंग क्योंकि ज्यादा एयर की ज्यादा लेयर्स है, इसकी बेंडिंग होती ज्यादा है, तो बेसिकली हमें ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके साथ मर्ज हो जाता है. एंड दैट हाउ सन अपीयर्स फ्लैट एट सनसेट. बुक्स में जब तुम पढ़ोगे तो सारी डेफिनेशंस में ये मिलेगा कि बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सन. बट इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन की जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है. ओके गाइस, लेट्स फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. सैटरडे संडे को क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे. मैंने आप लोगों की वजह से ही क्लासें लगाई है. आप लोग को पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे. संडे को पूरे दिन तो खाली नहीं घूमोगे, तो वो रिवीजन क्लास को ही अपनी ही स्टडी मान लो. और ट्रायंगल वाले चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन. ओके, नेक्स्ट चैप्टर आई हैड इन माय माइंड दैट वी विल डू सर्कल्स वाला थिंग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. बट मेरे को लग रहा है मेटल नॉन मेटल कर लें क्या एक बार उससे पहले? हाँ भाई, कंफर्म करो चैट बॉक्स में. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रह गया है सर. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई टर्म 1 में. सर है, स्कूल में पढ़ाया भी है सर. टर्म 1 में नहीं है. टर्म 1 में नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है टर्म 1 में. दादा पिछली बार भी आपने बताया था और हमने चेक किया था.
Okay, sir. सिर्फ टर्म 1 में अपने को सिर्फ लाइफ प्रोसेस है खाली। तो मैं कह रहा हूँ मेटल नॉन मेटल कर ले क्या, यही अपना चैप्टर बचा हुआ है बस अभी केमिस्ट्री का। Yes, sir. ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल करते हैं, उसके बाद फिर मैथ्स पे आ जाएंगे। तो मंडे वी विल स्टार्ट मेटल नॉन मेटल एंड सैटरडे संडे लेट अस डू प्रैक्टिस ऑफ अपना ये विराज एक बार मेटल नॉन मेटल करा तो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाएगा और केमिस्ट्री का तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी मैं सारे के सारे वो कराऊंगा, सारे जो मल्टी एटॉमिक आयंस वगैरह सब कराऊंगा। All right, sir. Comfortable, sir. ठीक है, तो उससे क्या है आप लोगों का वापस जो थोड़ा सा केमिस्ट्री में लैग हो गया वापस दोबारा आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू मेक द नोट्स, सेंड इट टू मी एंड वॉच द वीडियो फॉर योर रिवीजन। सैटरडे संडे क्लास डोंट मिस एनीवन। बाय Thank you, sir. बाय बाय बाय।